Hello, good morning student. I am Rajendra Simori, your maths teacher in class 10th. Today we are going into the forward into the 5.3. This particular chapter we just taking here the 5.1 and second questions just I here solved. That is very easy and you also done at your homework. Question number 2. Now we are going on to the next portion that is related with the same thing of the question number 3. It's also be easy, just we have to check it out. In this question we just take it that question number 3 suggests that for the following arithmetic progression, write the first term and write the common difference. हमें दो चीज बतानी है, एक फर्स्ट टर्म बताना है, वो तो वेरी सिंपल है, किसी भी प्रोग्रेशन में हमें फर्स्ट टर्म बताना इतना दिक्कत वाला नहीं होता, बट कॉमन डिफरेंस है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया वैसे ही करते हैं 3 1 -1 -3 डॉट 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 दैट काइंड ऑफ द वन सीक्वेंस इज गिवन ओवर हियर इन द फर्स्ट कॉलम. सो हियर first term is A1. We can also say that A1 like. This is A1, A2, A3, A4. That we all know that now. A1 is equal to 3. First term we already know that. But second one, we have to find out the how much difference between these two terms or two consecutive terms. अब सब consecutive terms में कितना difference है, वो चीज भी हमें देखनी है. How can we solve that? A1 is equal to 3 is that. Then we have to use this is a A1, this is A2, this is A3, this is A4. So we just make it A2 minus A1. So we get 1 minus 3 is there. So we get minus 2. Then again A2 minus A1, then A3 minus A2. So we get minus 1 because we have to use A3 minus A2, that's why minus 1. So we get minus plus, but the sign will be minus, that's why we get minus 2 is there. So वैसे तो हम दो का ही कंसेक्यूटिव कर ले तो भी हमारा डिफरेंस minus 2 आता है. फिर भी एक और यहाँ पे दिखा है तो A4 टर्म्स यहाँ पे दिख रही है तो A4 minus A3 कर लेते हैं तो इससे भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. -3 है यहाँ पे, -3 minus 1 is there, so we get -3 plus 1, so we get -2. तो आप देखिए ये तीनों तीन में -2 आ रहा है. -2 का मतलब इटसेल्फ है कि सभी जगह पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2. सो वी कैन डायरेक्टली से दैट फर्स्ट टर्म A1 इज 3 and common difference is obviously we have to use here -2. तो ये तो आंसर हो गया और ये तो बड़ा इजी है. ये पूरा पोर्शन है वो आप हैंडल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती. तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज में जब हम फ्रैक्शनल नंबर लेते कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये फ्रैक्शनल नंबर है ना वो बड़ी दिक्कत देता है बारी बारी से. तो एक चीज हम देख लेते हैं पहले. नेक्स्ट वन रोमन जो है वो सेकंड रोमन तो आपको होमवर्क में कर लेंगे, बट ये जो थर्ड वन रोमन जो है, ये थर्ड वन रोमन को मैं कंसीडर यहाँ पे करवाता हूँ. थर्ड वन एक्चुअली क्या सजेस्ट करता है हमें, 1/3 इज देयर, 5/3 इज देयर and 9/3 is there and 13/3 is there dot dot dot. So we have to write that this is our A1, this is A2, this is A3, this is A4 is there. So we get first one, first difference we have to get A1 is obviously 1/3, that is okay for here. Now what to do after first term? First we have to put A2 minus A1. So we have to get the difference here. Then A3 minus A2. And then A4 minus A3 is there.
Okay, so we have to get the difference all of a2 minus a1 means we have to get 5 by 3 minus, क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 by 3. Finally we get 5 minus 4, 5 minus 1, sorry. So we get the 4 is there because common is there. So 4 by 3 is there. A3 में से A2, 9 by 3 में से 5 by 3 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 by 3 minus 5 by 3. So we get again 9 minus 5 मतलब 4 by 3 is there. Similar में A4 में से A3, 13 by 3 में से आप 9 by 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आपको मिल रहा है अभी क्या, सिंपल सा 10 यानी 4 by 3. तो अब देखो ये तीनों जो पोर्शन आ रहा है वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया. सो फर्स्ट टर्म्स में बी कंसिडर्ड 1 by 3 एंड कॉमन डिफरेंस कंसिडर्ड 4 by 3. दैट इज अवर आंसर. तो ये जो चीज है दैट इज वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इट्स वेरी सिंपल. सो रिमेन पोर्शंस यू हैव टू कवर हियर. So 5.1 question number 3 remains Romans second and fourth. Both you have to work into the homework. Is it okay? तो जो भी होमवर्क आज रहेगा वो होमवर्क यहाँ पे मैं मेंशन करता जाऊंगा और हर एक चीज को आप यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे. Is it okay? तो ये चीज हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 3. Now we are going on to the another portion that is related with the question number 4. So let us move on to the question number 4 is there, and this question number 4 is suggesting us the most important things and it should also be very easy. Now question 4 is suggested which of the following आर एपीस, मतलब आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि जो भी गिवन है आपका ये पोर्शन में से विच वन इज कंसिडर्ड एज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है ये बताना है आपको, यानी आपको ये चूज करना है कि आइदर दिस गिवन प्रोग्रेशन इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. तो आपको पता है कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब दो टर्म्स या कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए. यदि ये है देन वी कैन से दैट इट इज इनटू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अदरवाइज वी कैन से दैट इट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. इज इट ओके? सो जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट. So let us move on to the question number 4. Now it is also easy again. I am telling before that either you have to check that whether the given sequence is into the arithmetic progression or not. और आपको ये पता है कि कब हम उसको arithmetic progression कहते हैं. Because of sometimes if the common difference is not found and it is not similar, then we can say that it is not into the arithmetic progression. So first of all, just we have to take question number 4 first. 2, 4, 8 and 16 whether it is in arithmetic progression or not, and find the common difference. D and write 3 more terms. याद रखो यहाँ पे और एक चीज बताई गई है, डिफरेंस तो फाइंड करना ही है, साथ में आपको ये करना है यदि ये एपी है तो आपको और 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है. समझ में आ गया ना? यदि नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है. बट इफ इट इज इनटू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन यू हैव टू से दैट ऑल्सो फाइंड आउट द 3 मोर टर्म्स. कैसे करते हैं? जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. 2, 4, 8, 16 आर देयर. नाउ वी हैव टू यूज दैट. This is A1, this is A2, this is A3, this is A4. Okay. So it is very easy. Now first we have to use A2 minus A1.
फिर से हम ऐसा यूज कर सकते हैं, a1 तो सीधा सा पहली टर्म से ही, फिर दूसरा टर्म हम क्या यूज करेंगे, a1 तो हमारा हो ही है 2, a2 माइनस a1 को हम कंसिडर करें, यानी 4 माइनस 2 का डिफरेंस आ रहा है 2, फिर हम यूज करेंगे a3 माइनस a2, then 8 minus 4, then we have to get here the 4. अब दो ही चीज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, क्योंकि हमें पता है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस ही कॉमन नहीं है, तो हम इसको एपी नहीं कह सकते, दैट्स व्हाई के इट्स नॉट एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो आगे की टर्म्स देखनी नहीं है, यदि है तो आपको आगे की टर्म्स देखनी है। समझ में आ गया ना, वेरी सिंपल है ये भी चीज, आप एक ही बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड वन पोर्शन, जस्ट वी हैव टू टेक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये चीज है वो अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल रहा हूं कि second Roman is suggest that 2, second one is 5 by 2, then 3, then 7 by 2 is there. Okay, अब हमें क्या करना है यहां से कि हमें देखना है a1 तो हमारा फिक्स ही है 2, नाउ a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3, ऐसा हम यूज कर सकते हैं सीधा सा। a2 है तो यहां पे हमारा 5 by 2 माइनस 2 आया, 5 by 2 माइनस 2 का मतलब होता है 5 by 2 माइनस, ये 2 है वो एलसीएम यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 5 by 2 माइनस 2 यानी 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ऐसा है। 5 माइनस 4 मतलब हमारे पास क्या बचता है 1 by 2, दैट इज अवर आंसर। सिमिलर वे वी आर यूजिंग a3, मतलब वी हैव यूज 3 माइनस 5 by 2। अब ये क्या होता है 6, 3 2 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, यानी हमारे पास बचता है 1 by 2। अगेन वी हैव टू गेट a3 माइनस a4 माइनस a3, मतलब 7 by 2 माइनस 3 इज दैट 7 माइनस 3 2 6 डिवाइड बाई 2, सो बचता है 7 माइनस 6 में से निकाल लो तो 7 माइनस 6 क्या होता है हमारा 1 by 2। अब देखो तीनों तीन चीज इक्वल है, 1 by 2 1 by 2 1 by 2, इट मीन्स दैट दिस ऑल थिंग्स आर इक्वल। हम ऐसा कह सकते हैं a2 a1 इज इक्वल टू a3 a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, दैट्स वाई इट इज इन एन AP। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज इन AP, ये AP में है। अब AP में है तो और 3 टर्म्स, इसके आगे वाले टर्म्स आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप, हमारे पास तो कॉमन डिफरेंस है ही, तो हम लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया a1 a2 a3 a4, और कितनी टर्म्स हमें फाइंड करनी है, a5 फाइंड करना है, a6 फाइंड करना है, a7 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, a5 है सपोज, तो a5 हमारा, a4 क्या है हमें पता है, a4 हमारा क्या है 7 by 2, 7 by 2 में डिफरेंस कितना ऐड करेंगे हम 1 by 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 by 2। हम ऐसा कर सकते हैं, 8 by 2 का मतलब क्या होता है 8 by 2, 8 by 2 का मतलब होता है 4, तो हमारे फिफ्थ टर्म्स आ गई 4। सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर a6, a6 मतलब a5 हमारा आया 4, यहां पे आया 4 में हम कितना ऐड करेंगे 1 by 2, यानी 6 plus 1 by 2, then we get 7 by 2।
तो हमारा पोर्शन क्या रहता है आगे जाके, सॉरी 4 2 कितना होता है 8 होता है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी 8, 4 2 8, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9/2 इज द नेक्स्ट टर्म। तो ये 6 हमारे कितने टर्म्स आ गई 9/2। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हैं ना। तो ये तो बड़ा इजी हो गया है, जैसे ही आपको एपी मिल गया, जो भी डिफरेंस है वो लास्ट टर्म में आप ऐड करते जाओ, इट विल गिव्स अस टू द न्यू टर्म्स, है ना, इजी चीज। तो ऐसे ही आप पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 2 रोमन्स तक किया है, तो बाकी के सारे रोमन्स आज आपको कंप्लीट करने हैं, यानी 3rd से लेके 3rd 4th 5th 6, यदि 6 तक है तो 6 तक, 7 5 6 7, यानी 7 and 8 also be there. Oh, so that's a good thing for you. So today's practice is excellent for you. Question number 3, 2nd 4th, question number 4, all 6 you have to work in today's homework. समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें और भी है, मतलब आज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 4 है, होल पूरा, मतलब आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी। याद रखो मैंने एक पहला क्वेश्चन है वो छोड़ा है, क्योंकि वो लास्ट में मैं उसको कंसीडर कराऊंगा जब हम a+n-1 into d की फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ ले। समझ में आ गया? So this is for you, and I hope so that you understood each and everything in this concept. So today we completed this 5.1 exercise. Whatever the things we explained, just you have to cover in your today's homework. Thank you very much for being with us. We will meet into the very soon. Thank you very much.